ઓશન કોર્પોરેશને પ્રથમ વખત અમદાવાદમાં પ્રતિષ્ઠિત આઈપીએસસીનું આયોજન કર્યું. ઉદ્યોગના અગ્રણી નેતાઓ સાથે સૌરવ ગાંગુલી પણ રહ્યા ઉપસ્થિત. અમદાવાદ 12 જૂન 2026. ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતના આગામી આર્થિક વિકાસ, આરોગ્ય સુરક્ષા, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને જનકલ્યાણમાં દેશની સપ્લાય ચેઇનની મજબૂતાઈ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવશે. અમદાવાદ સ્થિત ધ લીલા ખાતે યોજાયેલી ઇન્ટરનેશનલ પ્રોક્યોરમેન્ટ એન્ડ સપ્લાય ચેઇન કોન્ફરન્સ આઈપીએસસી 2025માં સંબોધન કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે સપ્લાય ચેઇન હવે માત્ર વ્યાપારિક કાર્યક્ષમતાનો વિષય નથી રહી, પરંતુ દેશો કેવી રીતે લોકોના જીવનની સુરક્ષા કરે છે, જાહેર સેવાઓની મજબૂત બનાવે છે અને લાંબા ગાળાની સ્થિતિસ્થાપકતા વિકસાવે છે તેની કેન્દ્રસ્થ ભૂમિકા બની ગઈ છે. બ્લુ ઓશન કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં વિશ્વભરના 500થી વધુ ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોએ ભાગ લીધો હતો. બ્લુ ઓશન કોર્પોરેશનના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ડોક્ટર સત્ય મેનને જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્ય એવા વ્યવસાયિકોનું છે જે સતત શીખી શકે, બદલાવને સ્વીકારી શકે અને આત્મવિશ્વાસ સાથે નેતૃત્વ આપી શકે. ટેકનોલોજી, ટકાઉપણું અને વૈશ્વિક જોખમોના કારણે પ્રોક્યોરમેન્ટ અને સપ્લાય ચેઇન ક્ષેત્ર ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે. શિક્ષણ વ્યવસ્થાએ માત્ર રોજગાર માટે નહીં, પરંતુ બદલાતી દુનિયામાં નેતૃત્વ માટે પણ વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરવા જોઈએ. ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય, પરિવાર કલ્યાણ અને મેડિકલ એજ્યુકેશન મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે સપ્લાય ચેઇન માત્ર વ્યવસાય પૂરતી મર્યાદિત નથી. આરોગ્ય સંભાળ, દવાઓની ઉપલબ્ધતા, આપત્તિ પ્રતિસાદ અને જનકલ્યાણ માટે પણ તે એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. આરોગ્ય સુરક્ષા આત્મનિર્ભરતાની સાચી અભિવ્યક્તિ છે, કારણ કે જે દેશ પોતાની ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કોલ્ડ ચેઇન અને મેડિકલ લોજિસ્ટિક્સ પર નિયંત્રણ ધરાવે છે, તે પોતાના ભવિષ્ય પર પણ નિયંત્રણ ધરાવે છે. મંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં એક મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય મુદ્દા તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું કે આવશ્યક દવાઓ, રસી, તબીબી સાધનો અને આપત્તિકાલીન પુરવઠો જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી ઝડપથી અને વિશ્વસનીય રીતે પહોંચે તેની ક્ષમતા દેશ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને કટોકટીના સમયમાં. તેમણે ભારતના આરોગ્ય પરિણામોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ફાર્માસ્યુટિકલ સપ્લાય ચેઇન, કોલ્ડ ચેઇન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, मेडिकल लॉजिस्टिक्स અને प्रोक्योरमेंट सिस्टम 28 साल से यही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो दुनिया का नंबर 1 सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का अवार्ड मिला हुआ है हमको. हमारा हेडक्वार्टर्स लंदन में है. हम लोग लास्ट 2 साल से दुबई से फिर इंडिया आया हुआ है कि इंडिया का सप्लाई चेन को कैसे आगे बढ़ाने का है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ. तो वो क्या बोलते हो आप, उसका मकसद से आया हुआ है हम लोग इंडिया में. और इंडिया को आगे कैसे लेके जाना है सप्लाई चेन के माध्यम से, वही हमारा प्लान है. ये जो कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन कॉन्फ्रेंस पहली बार हम लोग अहमदाबाद में कर रहे हैं. इसके पहले इंडिया में हम लोग दिल्ली, मुंबई ये सब जगह पे किया हुआ है. ये तीसरी बार कर रहे हैं हम लोग इंडिया में, जो अहमदाबाद में है. जो गुजरात, जो हमको लगता है जो ट्रेड का क्षेत्र में इंडिया का सबसे टॉप स्टेट्स में है. एंड जो इधर से जो गुड्स जो बनाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, मुंद्रा पोर्ट है, बाकी जो भी जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो गुड्स जाता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन से जो इधर से कैसे मटेरियल बनते हैं पूरा दुनिया भर में वो सप्लाई चेन की ओर पहुंचा सकता हूँ. उसके लिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया अहमदाबाद में. हमारा मानना है कि एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में सीमित न हो. इसे एंड सप्लाई चेन दुनिया भर में 90% इंग्लिश में ही सिखाया जाता है. सो हम लोग इंडिया में बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल्स है, बहुत लोग जो इंग्लिश नहीं जानता है, क्यों उन लोगों को रोकने का है एजुकेशन से. इसलिए हम लोग इंडिया का 14 लैंग्वेज में ये जो सप्लाई चेन एजुकेशन फॉर ऑल की तरह सबको सिखाने के लिए सप्लाई चेन. सो वो इंटरनेट की ज़रूरत है या क्लासेस का एक्सेसिबिलिटी, लोगों के पास जब बड़ा शहर में जाने के एक्सेस नहीं है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लर्निंग एट फिंगर टिप्स, ये AI और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोग ये जो एजुकेशन है इंडिया का हर कोने में पहुंचाना चाहता हूँ. एंड ये जो सप्लाई चेन
एजुकेशन फॉर ऑल एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है ब्लू ओशन का। हम लोग जेन्युइनली ये चाहता है हर भारतवासी सप्लाई चेन जाने समझे, क्योंकि ये जो एक चीज़ है जो आप सब लोग का ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा भी लेके आ सकता है, नुकसान भी लेके आ सकता है। जैसे अभी तेल सप्लाई चेन इश्यू है, हेल्थ केयर कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन इश्यू है। कोई भी दुनिया में कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होता है, कोई भी डिस्ट्रप्शंस होता है, तो इस सप्लाई चेन सबसे पहले अफेक्ट होता है। एंड आम आदमी तक सबसे एक कर्मचारी जो होटल में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट ऑफिस में हो, बड़ा बड़ा उद्योगपति हो, जो गवर्नमेंट हो, सबको अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए सप्लाई चेन सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सप्लाई चेन में आप काम नहीं करो फिर भी ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग सप्लाई चेन सर गुजरात में पहली बार आयोजन है, सप्लाई चेन को किस लिए देख रहे हो आने वाले 5 साल में? देखो अभी इंडिया जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से सिर्फ 15% है सप्लाई चेन का, बाकी 85% जो एक्टिविटी है सप्लाई चेन का उसके ऊपर बहुत सारा काम करने का है एंड बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर बराबर करेंगे हम लोग, लोगों को स्किल डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को समझाएंगे क्या चीज़ होता है ये, तो बहुत स्कोप है इंडिया के लिए, सारा इंडस्ट्रीज के लिए, लोगों के लिए, जॉब्स के लिए। जो 2000 में आईटी जैसे बूम हो गया, मेरा मानना है ये जो 2026 में सप्लाई चेन का ऐसा ही एक बूम शुरू होगा एंड अगला 5 साल में एक बड़ा